The king is in the midst of it. राजा हमारे बीच में है, The Holy One is in the midst of जो it. पवित्र है हमारे बीच में है। You will have an answer to your prayer. आपको अपनी प्रार्थना का एक उत्तर मिलेगा ही। Today we are going to meditate from Deuteronomy 33 and 29. आज हम मनन करने जा रहे हैं व्यवसरण 33 और उसके वचन 29 से। Shall we read that? आइए हम इससे पढ़ लें। Blessed are you, Israel, who is like you, a people saved by the Lord. He is your shield and helper and your glorious sword. Your enemies will cower before you, and you will tread on their heights. Happy and blessed are you, O हे Israel. इस्राएल तू आनंदित और आशीषित या धन्य है। The people of Israel are so blessed. इस्राएल के लोग बहुत ही आशीषित हैं। Even today they are blessed in everything. आज जबकि वो हर एक बातों में आशीषित किए गए हैं या आशीषित हैं, They are the best businessmen in the world. वे संसार के सर्वोत्तम व्यवसायियों में गिने जाते हैं। They have the greatest IQ in the world. संसार में सबसे ऊंचा IQ जो है उनका ही They है। are really blessed people वे वास्तव में परमेश्वर के आशीषित लोग हैं, because God loved them. क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। God has chosen them. परमेश्वर ने उन्हें चुना है, And that's why here Moses said to them, Who is like you, O Israel? और इसलिए यहाँ मूसा उनसे कहता है, हे इज़राइल तेरे तुल्य कौन है? The sword of your majesty is with you. तेरे महिमा की तलवार तेरे पास है। With much prayer, Moses blessed the people of Israel. बड़ी प्रार्थनाओं के बाद मूसा ने इस्राएलियों को आशीष दी He also said, The shield of God's help is with you. और साथ ही वो ये भी कहता है कि परमेश्वर के सहायता की ढाल तुम्हारे साथ है। Before Moses died, he blessed the sons of Israel. मरने के पहले मूसा ने इस्राएल की जो संतान थी उन His सबको words आशीष दी। brought hope and assurance to them. उसके वचनों ने इस्राएलियों के लिए आशा और निश्चयता पिलाई। Israel people were chosen people. जो इस्राएल के लोग थे वो चुने हुए लोग थे। In Isaiah 44:2, the Bible says, और यशायाह 44 उसके वचन 2 में बाइबल जो है यूं कहती है, the Lord says, यहाँ यहोवा कहता है, Jeshurun, I have chosen you. हे यशुरून मैंने तुझे चुना है। What is the meaning of Jeshurun? इस यशुरून नाम का अर्थ क्या है? Righteous people, धर्मी लोग, upright people. खरे लोग। The Lord made them as righteous and holy people. परमेश्वर ने उन्हें धर्मी और पवित्र प्रजा करके ठहराया था। The Lord disciplined them even though they were disobedient to God. और जो भी वो परमेश्वर के अनाज्ञाकारी थे, परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही ज्यादा अनुशासित He किया। gave them His word उसने उन्हें अपना वचन दिया and made them as His own people. और उन्हें अपनी ही निज प्रजा बनाया। He never forsook them. वो कभी भी उनको नहीं भूला। That's why the Lord gave them so many names. इसलिए यहोवा ने उनको अनेक अनेक नाम दिए, As we see in Isaiah 62:4. जैसा कि हम यशायाह 62 और उसके वचन 4 में देखते हैं। No longer will they call you deserted or name your land desolate, but you will be called Hephzibah and your land Beulah. For the Lord will take delight in you and your land will be married. तू फिर त्यागी हुई न कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई न कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागन होगी। The Lord take delight in यहोवा you. तुझ में आनंद लेगा, The Lord will take delight in यहोवा you. तुझसे आनंदित होगा। In another translation it says, My delight is in her. और दूसरा अनुवाद कहता है कि मेरा आनंद जो है उसमें ही बना हुआ है। What does it mean, happy and blessed? आनंदित और आशीषित होने का मतलब जो है क्या है? Happy in the world, जब आप संसार में आनंदित हों blessed spiritually. और आत्मिक रूप से आशीषित हों। If we are blessed with everything, we are happy in this world. जब हम इस संसार में सारी चीजों से
आशीषित होते हैं तो हम आनंदित होते हैं। That's why it says, happy and blessed, O Israel. इसलिए वो कहता है, हे इज़राइल तू आनंदित और आशीषित है। You will be like that. आप भी वैसे ही होंगे। People may say, you're fit for nothing. चाहे लोग कहें कि आप किसी योग्य नहीं हैं, But then God says, you are a blessed one. लेकिन यहोवा कहता है आप एक आशीषित जन हैं My delight is in you. और मेरा आनंद तो तुम में है। My delight is in you. मेरा आनंद तो तुम में है। Be happy. आनंदित हो, Rejoice. आनंद मनाएं। People may criticize you, चाहे लोग जो हैं आपकी निंदा क्यों न करें, say things against you, चाहे वे आपके विरोध में बात करें, but you be happy in the Lord. लेकिन आप परमेश्वर में आनंदित हों। You are a blessed one. आप एक धन्य जन हैं। You are a blessed one. आप धन्य जन हैं। For us to become really holy and blessed people, इसलिए कि हम सचमुच में पवित्र और आशीषित लोग बन जाएं, the Lord had to take us through different ways. परमेश्वर को हमें अलग अलग रास्तों से ले जाना पड़ा है। I want to share a testimony मैं एक गवाही आपके साथ बांटना चाहूंगा। of a person who gone through so many problems in life. और यह व्यक्ति अपने जीवन में नाना प्रकार के समस्याओं से गुजर चुके थे। There's a brother called Prasanna Kumar. एक भाई है, नाम है प्रसन्न कुमार। He was married in the year 2015. 2015 में उनका विवाह संपन्न हुआ था In 2018, he got a boy child. और 2018 में उन्होंने एक पुत्र रत्न की प्राप्ति की। But then after that, there came misunderstandings between the husband and wife. परंतु उसके बाद पति और पत्नी के बीच में कई प्रकार की गलतफहमियां जो हैं आ गईं, They were in the process of separation for 13 months. जिसके कारण 13 महीनों तक वे जो है विवाह विच्छेद की प्रक्रिया में आपस में लगे रहे। This brother could not even see his 4-year-old child for so many months. और कई महीनों के लिए ये जो भाई थे वो अपने 4 वर्ष के छोटे बेटे को देख भी नहीं पाए। Because of this depression, he lost his job also. और इसी बीच अवसाद के कारण में उन्होंने अपनी नौकरी भी खो दी। His relatives discouraged him, saying, "You are not going to meet your son or your wife anymore." उनके रिश्तेदारों ने उनको ये कहते हुए निराश किया कि अब तुम कभी भी न तो अपनी पत्नी और न अपने बेटे से मिलोगे You have to get prepared for a divorce. और इसीलिए तुम जो है एक डाइवोर्स या विवाह विच्छेद के लिए तैयार हो जाओ। This brother went through so much pain. यह जो भाई थे बहुत ही ज्यादा दर्द से होकर के जीवन में गुजरे। Every night he could not sleep. प्रति रात को वो बिल्कुल भी सो नहीं पाते थे, He shed tears. वो आंसू बहाते रहते थे And early morning at 3 o'clock he would wake up and pray to God. और भोर को 3 बजे उठ करके वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। And every day he would come to the prayer tower which is in Secunderabad. और प्रतिदिन वो सिकंदराबाद में स्थित हमारे प्रार्थना भवन में जाया करते थे प्रार्थना के लिए। Every day without fail he would pray. और प्रतिदिन बिना नागा किए वो वहाँ प्रार्थनाएं करते थे। And one of our prayer warrior, she introduced to him about the prophetic prayer training which was held in the year 2023. और वहाँ जो एक प्रार्थना योद्धा बहन थी, उन्होंने उनका परिचय प्रोफेटिक प्रेयर ट्रेनिंग के बारे में कराया जो कि वहाँ 2023 में रखी गई थी। और वो बड़े धीरज के साथ उस प्रेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे थे। And he was sitting in the prayer training program very patiently. और वो बड़े धीरज के साथ उस प्रेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे थे। And as soon as the meeting got over, we sat on the stage and we started to pray for the people individually. और जितनी जल्दी मीटिंग जो है समाप्त हुई उसके बाद हम मंच पर बैठ करके लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थनाएं करने लगे। As this brother came to me and prayed, और जब ये भाई मेरे पास आए तो मैंने प्रार्थना की। he really shed tears and poured out his heart to me. और उन्होंने सचमुच में आंसू बहाते हुए अपने हृदय को मेरे सामने खोल दिया। And I too cried for him and prayed. मैंने भी उनके लिए आंसू बहाते हुए प्रार्थना की। In the following days, my husband and
My son also, they prayed for him. और उसके बाद आने वाले दिनों में मेरे पति और मेरा बेटा जो है उनने भी उस भाई के लिए प्रार्थनाएं की। Shortly, on one fine day, he received a phone call from his wife. अचानक ही एक दिन उसको अपनी पत्नी से एक फोन कॉल प्राप्त हुआ She expressed her desire to meet him one day. और उसने अपनी इच्छा जताई कि एक दिन वो अपने पति से मिलना चाहती है। And for the next court hearing, they appeared together before the judge. और फिर वे दोनों ही अगली पेशी के दिन वहां जज के सामने प्रस्तुत हुए। And the wife said to the judge she wanted to withdraw the case against her husband. और उस पत्नी ने उस दिन वहां जज से कहा कि वो अपने पति के खिलाफ डाइवोर्स का जो आवेदन है उसे वापस ले रही है। They were not separated. और वे दोनों अलग नहीं हुए And they both joined together. और वे दोनों एक हो गए। The Lord restored their marriage. परमेश्वर ने उनके विवाह को एक बार फिर से Will पुनर्स्थापित He कर not दिया। do that for you also, those who are going through the same problem? और क्या वो आपके लिए जो वैसे ही समस्या से गुजर रहे हैं वही काम फिर नहीं करेंगे? God delights in you, dear friend. मेरे मित्रों, परमेश्वर आप में आनंद लेने में प्रसन्न होते हैं। God loves you. परमेश्वर प्रेम करते हैं। You are a chosen person. आप एक चुने हुए जन हैं। You will not be forsaken. आप भुलाए नहीं जाएंगे। Your land will not be called the desolate. आपकी भूमि को त्यागी हुई भूमि नहीं कहा, It will be married. लेकिन वह तो सुहागन भूमि कहलाएगी। The Lord will settle your life beautifully. परमेश्वर आपके जीवन को खूबसूरती से स्थापित The करे। Lord is your shepherd. यहोवा आपका चरवाहा है। He will lead you beautifully beside still water. वो आपको बड़ी खूबसूरती से ठंडे निर्मल जल, The Lord will restore your soul. यहोवा आपके जी में जी ले आएगा। The Lord will guide you in the paths of righteousness for His name's sake. अपने नाम के निमित्त परमेश्वर धर्म के मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। Then everyone will look at you and say, the shout of the king is among you. और तब हरेक आपको देख करके कहेंगे कि राजा का जय जयकार जो है तुम्हारे बीच है। The shout of the king is among you. राजा का जयनाद जो है वो तुम्हारे बीच में है। As you are in prayer always, जब आप हमेशा प्रार्थना में बने रहते हैं, as you are in the presence of the Lord always, जब आप हमेशा यहोवा की उपस्थिति में, you will have the reward. आप प्रतिफल निश्चय पाएंगे। And people will say, who is like you? और लोग कहेंगे कौन है जो तुम्हारे तुल्य है? A blessed person. तुम सचमुच में एक धन्य व्यक्ति हो। As we were coming yesterday to Karunya, कल जब हम यहाँ कारुण्या में आ रहे थे प्रियो, our driver Ravi was sharing his testimony to us. हमारा ड्राइवर रवि जो है वो हमारे साथ अपनी गवाही को बांट रहा था। He is building a house for him. वो अपने लिए एक घर का निर्माण कर रहा है And he wanted water and he was drilling the land. और उसे पानी चाहिए था और इसलिए वो वहाँ अपनी जमीन में बोर करा रहा था या ड्रिलिंग करा रहा था। Normally all the other houses, as they drill the place for 200 feet only, they had water. और उस क्षेत्र में अक्सर ये होता है कि जब लोग वहाँ बोरवेल कराते हैं तो कम से कम 200 फीट के बाद उनको पानी मिलता है। Only after that they got the water. और उसके बाद ही वे पीने लायक अच्छा पानी पाते हैं। But then for him, लेकिन उसके लिए ऐसा हुआ, in 60 feet, he got the water. केवल 60 फीट पे ही उसे पानी मिल गया। And everything he put his hand to, the Lord blessed it. और जिस काम में भी उसने अपना हाथ डाला यहोवा ने उसे आशीष दी। So the neighbors said to him, इसलिए जो पड़ोसी हैं उससे कहने लगे, brother, as you are always praying, भाई क्योंकि आप हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं as you are in the Bethesda center all the time, और चूंकि आप हमेशा बेथesda प्रार्थना केंद्र में रहते हो, the Lord is blessing you. यहोवा आपको आशीष दे रहा है। You are a blessed one. आप एक धन्य जन हैं, You are a blessed person. आप एक आशीषित पुरुष हैं। Likewise, people will say to you also, वैसे ही लोग आपके लिए भी कहेंगे, you are a happy and a blessed person. आप एक आनंदित और आशीषित जन हैं।
Who is like you? आपके जैसा कौन है? Who is like you? आपके जैसा कौन है? They will say, you are not like me, वे कहेंगे आप मेरे जैसे नहीं हैं, but you are a special person. लेकिन आप एक विशेष जन हैं। You are unto God a treasured possession. परमेश्वर के लिए आप एक अनमोल खजाना हैं। The King is in the midst of it. राजा हमारे बीच में है, The Holy One is in the midst of जो it. पवित्र है हमारे बीच में है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Do not be afraid. बिल्कुल भी ना डरें, Do not be afraid. बिल्कुल ना डरें प्रियो। You will have an answer to your prayer. आपको अपनी प्रार्थना का एक उत्तर मिलेगा ही। You will have your miracle. आप अपने चमत्कार को पाएंगे। The Lord who did wonders and signs in the midst of Israel, जिस यहोवा ने इस्राएल के बीच में चिन्ह और चमत्कार किए, He will do it to you also. वो आपके लिए भी यही करेगा। Hallelujah. हालेलुया। God's delight is in you, my friend. परमेश्वर का आनंद जो है वो आप में है मेरे मित्र। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। And secondly, Moses said to the Israelites, और दूसरी बात, मूसा ने इस्राएलियों से यूं कहा, the shield of your help is in the midst of you. तुम्हारी सहायता की ढाल तुम्हारे बीच में है। All power in heaven and earth was at their service. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा सामर्थ जो है उनकी सेवा के लिए लगा हुआ था। Israelites experienced God's help when God delivered them from Egypt. जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया तो उन्होंने परमेश्वर की सहायता को अनुभव किया था। The Lord's mighty hand, His outstretched arm, did wonders and miracles in the midst of them. और परमेश्वर की बढ़ाई हुई उस भुजा ने, उस दाहिने हाथ ने उनके लिए चमत्कार किए। The Lord was their help to them. और यहोवा परमेश्वर उनके लिए सहायक था। The Lord is your very present help in times of trouble. यहोवा आपके हर एक परेशानी के समय अति सहज से मिलने वाला आपका सहायक है। The shield of God's help is in the midst of you. परमेश्वर की सहायता की ढाल आपके बीच में है। When Abraham was so afraid of his future, जब अब्राहम अपने भविष्य को लेकर के बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, as in Genesis 15:1, the Lord said to him, तो जैसा हम उत्पत्ति 15:1 में देखते हैं, यहोवा ने उससे कहा, Abraham, do not be afraid. अब्राहम तू बिल्कुल भी मत डर, I am your shield, मैं ही तेरी ढाल हूँ your very great reward. और मैं तेरा महान प्रतिफल भी हूँ। The shield of God's help was with Abraham. परमेश्वर की सहायता की ढाल अब्राहम के साथ थी। Whatever he did, the Lord helped him. उसने जो कुछ भी किया, प्रभु ने उसमें उसकी सहायता की। The Lord provided for him. प्रभु ने उसके लिए हर चीज उपलब्ध किया। The covenant God was with him always. परमेश्वर का हाथ हमेशा उसके साथ था। David also said, as in Psalm 3:3, और जैसा कि हम भजन 3:3 में देखते हैं, दाऊद ने भी यही कहा, O Lord, you are a shield around me, हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, my glory, मेरी महिमा and the lifter of my head. और मेरे सिर का ऊंचा करने वाला यहोवा तू ही है। He was a little shepherd when he was young, जब वो युवा था तो मात्र एक छोटा सा चरवाहा ही था, but then as the shield of God was with him and the glory of God was with him, the Lord lifted him to be a great king. लेकिन जब परमेश्वर की ढाल और परमेश्वर की महिमा उसके साथ साथ थी तो परमेश्वर ने उसे एक महान राजा के रूप में खड़ा किया। The Lord will lift you up also to greater height. परमेश्वर आपको भी और भी ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। Even today the Lord has brought you with a purpose to bless you, आज भी परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ यहाँ लाया है कि आपको आशीष दे, to help you in all your ways. कि आपके हर एक कामों में आपकी सहायता करे। In Psalm 84:11 the Bible says, भजन संहिता 84 उसके वचन 11 में बाइबल कहती है, the Lord is the sun and the shield. यहोवा जो है सूर्य और ढाल है। The Lord bestows favor and honor. यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। No good thing does he withhold from those whose walk is blameless. और जो खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ न रख The छोड़ेगा। Lord will certainly help the righteous people. निश्चय ही परमेश्वर जो धर्मी लोग हैं
उनकी सहायता करेगा। The Lord will help you, dear friend. मेरे मित्र, परमेश्वर आपकी निश्चय ही सहायता करेगा। Do not leave God. इसलिए परमेश्वर को ना छोड़ें। As Jacob cried out to God जैसे याकूब ने परमेश्वर की दुहाई दे करके कहा and said, Unless you bless me, Lord, I will not leave you. कि प्रभु जी, जब तक तुम मुझे आशीष न दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Keep on praying to God. आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, Keep on looking up to God. परमेश्वर को निहारते ही रहें, He will help you. वो आपकी सहायता करेगा। Likewise, a brother called Joshua. जैसे कि एक भाई थे जिनका नाम जाशुआ था। He worked in LIC for 40 years. वो 40 वर्षों तक LIC में काम करते रहे He is a man of integrity. और वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। He was very honest. वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे And so all the staff members who were working with him found very difficult to work with him. इसलिए सारे लोग जो उनके साथ काम करते थे, उन्हें उनके साथ काम करना बड़ा कठिन लगता था। And so they decided to send him off from his job somehow. इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी तरह से इनको यहाँ की नौकरी से भेज दें। They found fault with him every time हर बार वे उनके काम में गलतियां ढूंढा करते थे and say they accused of him saying he has taken some money for his personal use. और ये दोष लगाते थे कि उसने अपने व्यक्तिगत काम के लिए कुछ पैसे जो है लोगों से ले लिए हैं। Every day they were accusing him of something or the other. रोज बरोज वे उसे किसी न किसी बहाने से उस पर दोष लगाया करते थे। He went through so much pain. उसे बहुत ही ज्यादा दर्द से होकर के गुजरना पड़ा। And so he started to go to the prayer tower, इसलिए वो प्रार्थना भवन जाना शुरू किए, which is in Coimbatore. जो कि कोयम्बतूर शहर में है। And there the prayer warriors started to fast and pray for them. और वहाँ जो प्रार्थना योद्धा थे, उन्होंने उनके लिए उपवास के साथ प्रार्थना शुरू की। They started to pray for him. वे उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किए। And finally one day they said, there is a meeting that is going to be held in Bethesda. और अंत में उन्होंने कहा कि देखिए, आने वाले दिनों में बेथesda में एक सभा होगी। Please go there. You will be led prophetically, they said. और उन्होंने कहा कि आप वहाँ जरूर जाएं, भविष्यवक्ताई रूप से परमेश्वर आपकी निश्चय अगुवाई करेंगे। And there when he came and sat in the meeting, और जब वो वहाँ आकर के उस सभा में बैठे हुए थे, my husband Dr. Paul Dinakaran, he just mentioned his problem. उसी समय मेरे पति डॉक्टर पॉल दिनाकरन ने उस भाई की समस्या का जिक्र वहाँ पर किया। And he rightly said, you will get promotion in your job. और उन्होंने बिल्कुल सही सही कहा कि आपको आपकी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। And as he went back home, और जब वो वहाँ से लौट करके घर गए, he got the good news of उन्हें यह खुशखबरी मिली कि saying you have got a promotion in your job. कि आपको आपकी नौकरी में पदोन्नति दी जा रही है। What a good God we have, isn't it? हमारे पास कितना अच्छा, कितना भला The परमेश्वर है। Lord really lifted his head above all the people he was working. जितने सारे लोगों के बीच में वो कार्य कर रहे थे, उन सब के बीच में प्रभु ने उनके सिर को ऊंचा किया। Among all the staff members, उन सारे स्टाफ के बीच में से the Lord blessed him and gave him a promotion. प्रभु ने उस भाई को आशीष दी और उन्हें एक पदोन्नति भी प्रदान की। Today he is dealing with lakhs of money. आज वो लाखों लाख रुपए के साथ प्रतिदिन कारोबार करते हैं। And the Lord has lifted him up to greater heights. और परमेश्वर ने आज उन्हें बहुत ही ऊंचे स्थान पर रखा है। And today he is serving the poor people in Jesus Calls ministry. और वो जीसस कॉल्स की सेवकाई के साथ जो गरीब लोग हैं, उनके बीच में कार्य करते हैं। And he is going on saying, I am happy and blessed in my life today. और आज वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं जो हूँ अपने जीवन में बहुत ही आशीषित हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। The Lord who helped this dear brother Joshua will help you also. जिस परमेश्वर ने इस प्रिय भाई जाशुआ की सहायता की, आपकी भी सहायता करेगा। Your help is on the way. आपका स्वास्थ्य रास्ते में है। And thirdly, और तीसरी बात, the sword of your majesty is among us. आपके महिमा की तलवार हमारे बीच में है। The sword of God's majesty is among us. परमेश्वर के महिमा की तलवार जो है हमारे बीच में है। Dear friend, the Bible says in Psalm 66:3,
मेरे प्रिय मित्रों, भजन 66:3 में बाइबल कहती Because है, of the greatness of God's power, परमेश्वर के सामर्थ की महानता के कारण से ही the enemies of the Israelites pretended to be obedient to जो God, इस्राएल के शत्रु थे वो ऐसा दिखाने लगे वो परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं, pretended to be obedient to the Israelites. वो इस्राएलियों के आज्ञाकारी हैं। इस तरह से वो लोगों को परमेश्वर को Because दिखाने, of the power of God among the Israelites, इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर की सामर्थ के कारण even the enemies pretended to be their friend. यहाँ तक कि शत्रुओं ने भी ऐसा दिखाया बर्ताव किया मानो वो मित्र हैं। They wanted to be at peace with the Israelites वे इस्राएलियों के साथ शांति के साथ रहना चाहते because थे, the defender was with the Israelites. क्योंकि रक्षा करने वाला जो था इस्राएलियों के साथ में था They could not stand before the Israelites. और वे इस्राएलियों के सामने खड़े भी नहीं हो पाए। The Lord's sword was among them. यहोवा परमेश्वर की तलवार उनके बीच The थी। Lord's sword is among you also, dear friend. मेरे मित्र, परमेश्वर की तलवार आपके भी बीच में The है। sword of the word of God is among you. परमेश्वर के वचन की तलवार आपके बीच में है। No one can stand against. कोई उसके खिलाफ में खड़ा नहीं हो सकता। You will say the word of God, आप जब परमेश्वर का वचन कहेंगे and the enemy will tremble before you. तो शत्रु आपके सामने कांपेंगे। No one can find fault with you. कोई आप में दोष न निकाल पाएगा। He is your defender. वही आपका रक्षक है, He is your defender. वही आपका रक्षक है। Dear friend, मेरे प्रिय मित्रों, in Joshua chapter 5, यहोशू उसके अध्याय 5 में हम देखते हैं, when the Israelites landed in the promised land Canaan, जब इस्राएली जो थे उस प्रतिज्ञा के देश कनान देश में पहुंचे the Lord said to them, take possession of Jericho. तो परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा कि यरीहो नगर पर तुम अधिकार ले लो। This was the first settlement they had to acquire. और ये सबसे पहला नगर था जिसको इसराइलियों को अपना अधिकार में लेना था या उसे जीतना था। And so they were so afraid. और इसीलिए वे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। But then Joshua, लेकिन तब यहोशू जो है he went to the Lord and prayed to him. उसने यहोवा परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना His की। eyes were upon God. उसकी आंखें परमेश्वर पर लगी हुई थी। That's why the Bible says in Joshua 5:13 to 15. और इसीलिए यहोशू 5 उसके वचन 13 से 15 में बाइबल जो हमें बताती है, When Joshua was by Jericho, he lifted up his eyes and looked. कि जब यहोशू यरीहो नगर के पास पहुंचा तो उसने अपने आंखें उठाकर देखी When he prayed and looked at God, और उसने आंखें उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना की। behold, a man was standing before him with his drawn sword in his hand. और वहां पर परमेश्वर का एक दूत अपने हाथ में एक खिंची हुई तलवार लेकर के उसके सामने खड़ा था। It was not just an angel of God, ये केवल परमेश्वर का एक दूत नहीं था, but then लेकिन the scholars say it was Jesus who was standing with him. जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये तो यीशु उसके सामने खड़ा था। He was Jesus who was standing with him ये यीशु थे जो उसके सामने खड़े with a थे drawn sword. एक खिंची हुई तलवार के साथ। Jesus is with you, dear friend, मेरे मित्रों, यीशु आपके साथ साथ है to fight for your battle. ताकि आपकी लड़ाइयों को वो लड़ें। You need not fight your battle alone. आपको अपनी लड़ाइयाँ अकेले नहीं लड़नी है। The Lord will come along with you प्रभु यहोवा आपके साथ में आएंगे as a warrior, एक लड़ाके के रूप में, as a mighty warrior. एक शूरवीर योद्धा के रूप That's में। why Jeremiah says in Jeremiah 20:11, और इसलिए तो यिर्मयाह 20 और उसके वचन 11 में भविष्यवक्ता यिर्मयाह जो है कहता है, the Lord is with me like a mighty warrior. यहोवा परमेश्वर शूरवीर योद्धा के समान मेरे साथ में खड़ा है। So my persecutors will stumble and not prevail. इसलिए मेरे सताने वाले ठोकर खाएंगे और वो मुझ पर हावी ना हो। It was called a defending city. और उसे तो एक रक्षक नगर के रूप में जाना जाता था। It was so difficult to capture उसे कब्जे में लेना बहुत ही ज्यादा कठिन था, because those walls were so thick. क्योंकि उसकी जो शहरपनाह थी, दीवारें बहुत ज्यादा मोटी थीं।
They were so high to reach. और पहुंच से बाहर ऊंची थीं। That's why the Lord went with them to fight the battle. इसलिए स्वयं परमेश्वर उनके साथ लड़ने के लिए उनके आगे आगे गया। The Israelites did not go to war. इजरायली जो थे वो लड़ाई में नहीं गए, They just shouted and praised God. उन्होंने बस जोर का नारा लगाया और परमेश्वर की स्तुति की, And the walls just crumbled down. और जो दीवार थी वो भरभरा कर गिर गई। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That's why we have to pray and praise the Lord all the time, believing in God. इसलिए ईश्वर पर भरोसा करके हमेशा न केवल प्रार्थना करनी है पर प्रशंसा भी करनी The है। Lord would say anything, immediately obey. और जो भी प्रभु आपको कहे तत्काल ही आप उसकी बात को, You need not fight your battles alone. और आपको अकेले अपने लड़ाइयों को लड़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। The mighty warrior will come along with you, dear friend. वो शूरवीर योद्धा मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, वो आपके संग संग आएगा। The Lord is with you like a mighty warrior. स्वयं प्रभु आपके साथ एक शूरवीर योद्धा के समान है। Who is like you, O Israel? हे इज़राइल, तेरे समान कौन है? Who is like you, O Israel? हे इज़राइल, तेरे समान कौन है? You are a happy and blessed people of God. तुम तो परमेश्वर के आशीषित और आनंदित लोग The हो। shield of God is with you. परमेश्वर की ढाल तुम्हारे साथ है, The sword of God is with you. परमेश्वर की तलवार तुम्हारे साथ है। No enemy can stand against you. कोई शत्रु तुम्हारे खिलाफ में खड़ा नहीं हो सकता। But on the other hand, you will possess the land of your enemy. लेकिन दूसरी ओर आप अपने शत्रुओं के देश पर पूरी तरह से अपना कब्जा करने पाएंगे। That's what the Bible says in Deuteronomy 33:29. व्यवसारण 33:9 में बाइबल जो है हमें यही बात बताती है प्रियो, You will tread on their high places. कि तुम उनके ऊंचे ऊंचे स्थानों को ढा दोगे Your enemies will cringe before you. और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने भागते हुए जाएंगे। This will happen to us, dear friend. मेरे मित्रों, यही हमारे साथ होगा। This will happen to you and me. आप और मेरे साथ यही होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Your enemies will pretend to be your friends. आपके शत्रु आपके मित्र के समान दिखाएंगे खुद They को। show themselves as obedient to you. वे आपके सामने अपने आप को आपके आज्ञाकारी बताएंगे। They will come and make peace with वे you. आकर के आपके साथ शांति समझौता But करेंगे, then you will be called as a happy and blessed people. लेकिन आप जो है एक आनंदित और आशीषित प्रजा या लोग कहलाएंगे। Who is like you, O हे Israel? इज़राइल, तेरे समान कौन है? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Be happy, आनंदित होइए, खुश rejoice, होइए and give glory to the और Lord. प्रभु को महिमा दीजिए। The Lord is in the midst of it. यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में The है, King is in the midst of it. राजा हमारे बीच में है, The Holy One is in the midst of जो it. पवित्र हमारे बीच में है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Do not be इसलिए afraid. बिल्कुल न डरें, Do not be afraid. बिल्कुल न डरें। You will have an answer to your prayer. आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर निश्चय पाएंगे, You will have your miracle. आप अपने चमत्कार को पाएंगे। The Lord who did wonders and signs in the midst of Israel, जिस परमेश्वर ने इस्राएल के बीच में चिन्ह और चमत्कार किए, He will do it to you also. वो आपके लिए भी यही करेगा। Hallelujah. हालेलुया। God's delight is in you, my friend. परमेश्वर का आनंद आप में है मेरे प्रियो। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Shall we all look up to God and pray? आइए हम प्रभु को प्रार्थना में Thank you, निहारें। Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You have named your children आपने अपने संतानों को नाम देकर के पुकारा है। as Jeshurun. आपने उसे यशरून कहा है। Jeshurun. यशरून, My delight is in her, मेरा आनंद उसमें है, the redeemed one, जो छुड़ाया हुआ है, the holy one, जो कि पवित्र है। people who are sought after, लोग जिनको लोग पसंद करते हैं, holy people, पवित्र प्रजा, पवित्र लोग, not forsaken. और जो त्यागी भी नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You are a blessed one. आप एक धन्य लोग हैं, You are a blessed one. आप जो है आशीषित लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise God. परमेश्वर की प्रशंसा हो। Just believe
praise God. बस विश्वास करें, उसकी स्तुति करें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Even the outstretched hand of God is upon you, dear friend. मेरे मित्रों, परमेश्वर का फैला हुआ हाथ आप पर Is है, coming upon you. वो आप पर आ रहा है। Let people say, होने दें कि लोग जो है ये कहें who is like कि you? तेरे समान कौन है Let परमेश्वर। enemies come and make peace with us. होने दें कि शत्रु आकर के हमारे साथ मेल मिलाप करें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु जी, for coming along as a mighty warrior. हमारे साथ शूरवीर योद्धा के रूप में आने के लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you abundantly. परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ आशीष दें। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं बेथेस्दा प्रेयर सेंटर जो कि कारुण्या नगर कोयम्बतूर में है। Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। So come with all your family members. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे। We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। The hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए, It will come upon you. वो आप पर आएगा And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं। Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयम्बतूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है। Just come. बस आइए, Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्दा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्या नगर कोयम्बतूर में आएं। तारीख है रविवार 7 जुलाई, समय है दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर तुरंत संपर्क कीजिए।